more than happy. And I think sad endings stay with you for longer time than happy endings. जब मिल जाते हैं लोग तो भूल जाते हैं, जब नहीं मिलता कोई तो याद रहता है. That's how human life is. दुनिया भर में समाज जो है वो सक्सेस को रिस्पेक्ट करता है. People respect success. People do not respect craft, skill set. 12 फेल बनेगी मुझे लग रहा था. तो आई डोंट थिंक आई वर्क ऑन लॉजिक सो मच बिकॉज आई जेन्युइनली डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लॉजिक पे फिल्म हिट या फ्लॉप हो रही है, स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स. You would find this here, that it's even now that a 65-year actor has to build 6-pack, 8-pack abs to come on screens and be validated. Very, very, very good evening, afternoon. जब भी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, we've got Medha and we've got Avinash in the studios and Kinni with Sunny. ये जो आपकी chemistry है, it's looking very nice. In fact, मुझे बहुत I'm very glad कि आप दोनों की chemistry in general, दोस्ती जो है in general, very warm. खुशी होती है, अच्छी बात है, बहुत दुनिया अच्छी है. ठीक है, इजराइल में ईरान में जो चल रहा है हाँ, बाकी यहाँ पे तो सब खुशहाली है, अभी सब ठीक है. हाँ, लेकिन पिक्चर में तो ठीक नहीं है. हाँ, ज़रा बताएं आप गिन्नी. हम सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि ये फिल्म कैसे आ गई आपके पास में. थोड़ा जो आंसर्स हैं जो नॉर्मली आपने कई बार दिए हैं, एक बार फिर से हमारे मिर्ची के लिसनर्स के लिए बताइए प्लीज़. मेरे पास ये फिल्म प्रोड्यूसर्स की तरफ से गई थी, विनोद बच्चन सर की तरफ से. एंड जब मेरे पास आई थी तो ऑलरेडी बताया गया था कि अविनाश इज़ अटैच टू द फिल्म. तो जब मैंने सुनी तो स्क्रिप्ट लेवल पे ही वो बहुत ही इतने टाइम बाद मैंने कोई स्क्रिप्ट सुनी थी जो इतनी एंडियरिंग और इतनी रिलेटेबल लगी थी, इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, इन टर्म्स ऑफ फैमिली डायनामिक्स, in terms of their love story. It's damn sweet and damn relatable, and it's very, very enduring. It's like two sweet immature people, how they navigate through their relationship, and it's not like shadi ho gayi happily ever after. They show you exactly what happens after. Yeah, so that's a good thing. So I think I was sold at script level only. I really liked the script, and of course there was Avinash's name attached to it, and I kind of was friendly with him because we were supposed to do another film together. That didn't happen. So there was always this comfort I had with Avinash. So I was very excited ki chalo, let's do it. Very good. Avinash, tell us a little bit of the backstory about this film and how do you normally make, आप अपना decision कैसे लेते हैं? मम्मी से पूछ के, दोस्तों से पूछ के, coin toss करके? इस फिल्म की खास बात ये है कि I'll start with Medha actually, though I've told this at several places, but Please go ahead. Yeah, it is what really happened. So I was watching 12th Fail and with a friend, film got done. I was so happy to see the film. Vikrant was fantastic, and then this new girl that I was seeing for the first time, and I said, यार I think यार I should work with her. ऐसा कुछ मन में नहीं ख्याल आता कि यार हमने काम करना चाहिए. 15, 20, 25 दिन हुए होंगे और एक फिल्म का ऑफर आया हमारे पास. And I was like, okay, सही है. The director was someone I wanted to work with. And then he mentioned Medha. So I was like, of course ये होना चाहिए. But वो 15 दिन बाद वो फिल्म भी बैठ गई. And for some reason at that point I was very, very, like, I don't know why I was feeling so upset. I kept saying sorry to her. He was apologizing to me only, बेचारा. So sweet. I said, why are you apologizing? इसको फिल्म बंद होने का अपने से ज़्यादा मेरे लिए दुख था कि you have come out of a big hit. It should not happen to you. Yeah, you know, like for me, I haven't tasted that kind of success. Very honestly, that 12th Fail happened to have, and the kind of success Medha had. So I know what it takes to be there, and you're there right now, and then you have to go through the tough things. जो मैं करते यार वो तो मेरी लाइफ की जर्नी है ना. It shouldn't be part of your life journey is how I saw it, and I felt very, very sad about it. Cut to within a month, I get a call from Mr. Vinod Bachchan. I go in to hear the story. I heard it. I kept laughing thoroughly non-stop. It was a story that it made me feel like everything that is being spoken in the film is something that I've heard. I've heard people around me speak. It spoke to me so much I can't tell you. And I thought it would speak to people in my family. Hence, you know, whatever work that I've done. Like, मैं मजाक में कहता हूँ, मेरी भाभी ने कहा कि लैला मुझे में तू पागल हो गया. बुलबुल में वो चुड़ैल बन गई. खाकी में तूने बच्चे को गोली मार दी. उसमें दाऊद इब्राहिम. You know, all the kind of conversations. So this was my first thought that I want to do it. Cut to, he says, हम सोच रहे हैं मेधा शंकर जानते हो तुम, 12th Fail फिल्म जो आई है. So I like, हाँ
yeah, I know her, you know, I was Your pretending. name And that, sounds like मैंने yeah, सुना है but कि- there's this that moment, the joy was, वो नहीं देख ये set हो गया मेरा. You know, that was my feeling at that point of time. I genuinely at that point wanted to ensure that we come together, and I felt that I think when people would look at us, it would look like a very fresh on-screen couple. 12th fail बनेगी मुझे लग रहा था. Hmm. तो आई डोंट थिंक आई वर्क ऑन लॉजिक सो मच बिकॉज आई डोंट जेन्युइनली डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लॉजिक पे फिल्म हिट या फ्लॉप हो रही है, स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स. ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी अ गुड फिल्म, द क्राफ्ट हैज़ टू बी राइट, बट किस्मत है फिल्म की. तो मैंने तब भी इतना प्रेशर, मुझे अभी भी याद है ये बात होती थी 50 करोड़ अगर 12 फेल नहीं कर लिए तो मैं सोचती अरे 50 100 मैं से कुछ भी बोलती थी. ऐसे मज़े में दे यूज्ड टू लुक एट मी लाइक ओके. सो मैं आई रियली वर्क ऑन फेथ अलॉट. मैंने अपना काम कर दिया है, विनाश ने अपना काम कर दिया है. हमने बहुत बहुत अच्छे इंटेंट के साथ बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है. अ लॉट ऑफ आवर आई वुड नॉट से एट स्टेक, बट for outsiders or like people like us, every film is, you know, so much is at It's a stake. make or break. I You only know? think of make. I think that's the only way I survive. But yeah, तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि even with Ginny, with Sunny too, I personally feel everything has spoken to my heart. So I think instinctively I feel we've made a very sweet film that will speak to the audience's hearts, and if it does, then it's going to have its beautiful, beautiful destiny. Superb. और होना भी चाहिए यार. आई रियली, वो मैं कह रही हूँ ना आपको, ऑडियंस को कभी कभी थोड़ा पता होता है. आई थिंक द आर्टिस्ट से ज़्यादा मालूम नहीं तुम लोग को अभी तक. अभी फटा नहीं, अभी फटेगी, अभी फटेगी, अभी अभी रुको, हाँ, रुको. correct. But that is the sweetest part ना, It कि is. like we feel like underdogs कि यार ये अभी समझ नहीं रहे. But there are so many people who are like अरे दिख रहा है, wait, we're rooting for you. You know, I think that's the most beautiful part. It really is. Also with लैला मजनू, मतलब ये होता है ना कि आई एम श्योर अविनाश को ये सवाल बहुत सारी बार आया है कि जब पहले रिलीज़ हुई तब नहीं फटी, जब दूसरी बार रिलीज़ हुई तब फटी, ये डिस्पैरिटी क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है. बट आई एम ग्लैड, मतलब इट्स रीच्ड आउट टू द पीपल दैट इट्स रीच्ड आउट टू, एंड इट शुड रीच आउट टू मोर पीपल. एंड व्हाट अ फिल्म. खासकर हमारी इंडस्ट्री, आई थिंक दुनिया भर में समाज जो है वो सक्सेस को रिस्पेक्ट करता है. पीपल रिस्पेक्ट सक्सेस, पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट क्राफ्ट, स्किल सेट. इन द इंडस्ट्री might be, say there'll be a lot of radio jockeys, and the radio jockeys inside would know who is what. That doesn't mean that the audiences who's listening to it gives the same kind of validation or reward to the one who's truly out there with the best skill set, right? And we know this. So we understand that वो सक्सेस क्यों है, क्या है, किस लिए है, किसको मिलती है, क्यों मिलती है, इसका कोई there is absolutely no idea, no reasoning, no logic behind it. So for me, when I first discovered that, my only value and respect came through for people who have the craft, who have the skill set, who put their head down and work. And that's what you see get respected in the business. When I am on set, everyone who's on set really respects the one who knows their job. They might not be big stars. Those big so-called successful people, if they're not good at their craft, no one likes them, right? It is very, very clear. Now, what will make that breakthrough कि किसी दिन कोई एक फिल्म मिलेगी, ये वो फिल्म है या अगली वाली है, ये मेरी शायद 9वीं 10वीं फिल्म है. I don't think I can function anymore thinking about it. The only thing that I can do and back myself to say that nobody else can do better than me is put my head down and work and do it with all my every bit of me as much as I can. इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? Then बाकी audience, it's for the people to actually, and I keep saying this, not just the audiences, it's the consumers overall. We are slowly building into a capitalistic country. We were speaking about it the last time we met. And we need to be better consumers. That would include better audiences. We are still an industry. It's the only industry in the entire world, I think, where it's only desirability and vanity that sells much more than craft and skill set. You look at internationally west side, you go to south.
you would not find this. You would find this here, that it's even now that a 65-year actor has to build 6-pack, 8-pack abs to come on screens and be validated. That doesn't happen everywhere. So we're still part of evolution. And if we had evolved, तो वो हमारे जैसे बहुत आपको लगता है अरे हो गया यार, इसका अब कितना मिल रहा है, थोड़ा कम मिलना चाहिए इसको. I think that is what you would have said. But फिलहाल हम underrated सुन जिंदगी काट रहे हैं. Yeah. But I genuinely don't feel he's under. I feel the perception is कि अगर if you're accurately rated, because see I'll tell you very honestly, I have seen his fan following. Like I've seen fans shaking and crying. ये कितने, how many people? Medha, you're too cute. Yeah, fans shaking. Yeah, I'm telling you, they're shaking and crying and having like a long conversation going on till 15 minutes. I'm watching कि चलना है and they're going on and on. Yeah, I don't think that depth of love everyone experiences with their fans. So I think underrated from a certain perspective, but I think he's very accurately loved by people. Yeah, abundantly इतना ही loved. भाई, इतना ही also. मिलना Yeah, accurate. No, of course it's gonna go. I mean, More. It's gonna be. I don't like the word underrated. It's so like. Yeah, it's not a. It's not a But compliment. I think it's still being said in the nicest in the way right possible. way. No, the intention It's is still correct. being said yeah. that. कि you deserve more. It's more Yeah, that. yeah. um, हाँ, दुख हो रहा है ना हमें. हाँ मुझे भी हमारी लगता है EMIs इसको, का हाँ. जो कुछ भी वो चल रहा है वो दुख हो रहा है कि मतलब ये इतने टैलेंटेड ऐसा क्यों कर रहे हो यार, भगवान यार. So Yeah, there's a I tiny know. prey which is going on How for like. Thank you so much. That's true, And it's almost like you start representing everyone कि यार मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा, इसकी जिंदगी में तो हो जाए. So it's exactly like आपने जैसे मेधा को कैसे बोला सॉरी यार सॉरी Yeah. Imagine. सॉरी यार Yeah. सॉरी नहीं हो पा रहा है, मतलब वही है Yeah. हमारे Yeah. लिए भी है. Yeah. That's exactly what it is. Yeah. About weddings in general, मुझे शादियों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, थोड़ी सी ऑड सी है. जब विदाई में लोग रोते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर. फिर मैं भी रोती हूँ, सब रो रहे हैं. इट्स अ गुड एटमॉस्फेयर. आपके लिए कौन सा है फेवरेट पार्ट ऑफ अ वेडिंग? खाना खैर है, नाचना है, कपड़े नए नए I पहनना. like to see people so joyful. जिनकी आपस में 2 महीने से लड़ाई चल रही थी चाचा जी की, उनके साथ blah blah blah, and suddenly everyone's dancing together, eating together, everyone's giving blessings to bride and groom. I really like everyone coming together and just exuding joy and love. I really like that. So I do like bidai part where like genuine emotion is coming out of people's hearts. I genuinely enjoy. I like happy tears or I love just happy emotion tears. of any kind. Yeah. I या enjoy कभी it. आजकल तो हम ब्राइड को देख भी नहीं रही हूँ मैं, डायरेक्ट ग्रूम को आंसू टपक रहा है, वो तो स्वीट लग प्रैक्टिस रहा हो है. गई है. बोला अभी किसी ने कि आजकल हाँ? मैं बोल रहा था इन्होंने बोला कि मेरे एक दोस्त ने मुझे रीच आउट किया कि यार यू नो दैट डे ही वाज गेटिंग मैरिड, सो ही सेड वी वर वाचिंग समथिंग ऑन टीवी या सम इंस्टाग्राम थिंग, आई डोंट नो, एंड the bride comes and the groom turns and the tear falls and she went, oh my god, this is what I want. important. And he said, मैं तेरे को देखो रोऊंगा क्यों? That was the first thought to him कि मैं तेरे को देखो रोऊंगा क्यों? मैं तो खुश हो रहा हूँ. हाँ, but she's like, but खुशी के Happy आंसू. tears है ना. बोला आज तक जिंदगी में नहीं आया मेरे को खुशी के आंसू. सही बात है. ठीक है, कुछ लोग को नहीं तो ये कुछ लोग ठीक है यार. कुछ लोग को आते हैं यार. हाँ भाई बाप. सब लोग नहीं लगा रहे लड़के ग्लिसरीन. I really hope कि आपकी I जिंदगी really में hope you look at your bride and you shed a tear. I mean, maybe I will that मेरी खुशियाँ जा रही हैं, but so he reached out, he said कि यार ये मुझे करना है, तो वो मुझसे वो genuinely what he wanted to do was because I'm an actor, so he thought I will give him some tips to Act. bring the tears. बेचारे के ये नहीं सोच रहे कि वो चाहता था कि उसकी बीवी खुश हो पाए, ये नहीं कर पाता, वो फिर भी वो कोशिश कर रहा है. Not bad. He's reaching out to an actor. Effort. Say भाई please help me or my wife wants me to do Accurately this. rated actor को reach out करके Accurately पूछ रहे हैं. loved. Loved and rated, अच्छा, yes. इतनी मेहनत कर रहा है वो लड़का, लेकिन उसके बाद भी खुश नहीं नहीं. कहाँ मैं बोल रही हूँ effort I am counting ना. एक समय था जब एक बार मिलते हैं, उसके बाद शादी हो जाती, बहुत सालों तक शादी चलती, एंड दैट वाज दैट. एंड टुडे देयर आर लॉट्स ऑफ लेयर्स. सिचुएशनशिप है, ब्रेड क्रमिंग है, रिलेशनशिप में है, नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सब पहले भी थे, अब नाम डिफाइन कर देना. नहीं यार, मैंने मम्मी से पूछा, नहीं, फिर मैंने मतलब- उस समय के और औरतों से पूछा कि प्यार मोहब्बत ब्रेड क्रमिंग ये वो. नहीं, मम्मी तक चले जाएंगे तब तो बहुत, लेकिन 10 साल पहले तक नहीं था यार. मतलब I think the problem is normalize कर दिया है ये सब words दे के ना. पहले बोलते थे ये तो बेकार लड़का है, खत्म बात, आगे बढ़ो. अभी ब्रेड क्रम्बिंग हमने नॉर्म की, ठीक है ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है, ये आई थिंक दैट इज द नहीं, प्रॉब्लम. पहले ऐसे बोलते थे हम इस रिश्ते को क्या नाम देंगे, अब इन्होंने दे दिया.
दे तो आप- फाउंड अ नेम करेक्ट, You अभी know. जस्टिफाई हो गया. कि अब ये रिश्ते को क्या नाम दें, तो ये तो नैनोशिप है, ये सिचुएशनशिप है, ये ब्रेड क्रम्बिंग वाला था. So I think it's just like now because I can label it, define it, I know I it, can you do know, and I can do anything, anything. But sorry, your question नो was? दैट्स ओके. मॉडर्न लव के जितने लेयर्स हैं और जितने नाम हैं, क्या ये सारे लेयर्स हमें गिन्नी विद सनी 2 में दिखेंगे? व्हाट एग्जैक्टली कैन वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस फिल्म विदाउट एनी प्रेशर? नो प्रेशर. यू नो आई थिंक ये तो इस तरह का नहीं है, बहुत ही पाक तरीके से इनका रिश्ता शुरू होता है विद अ लॉट ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, अ लॉट ऑफ प्योरिटी. की सुंदर है यार इसकी फोटो, हो इसकी आई लाइक यू नो वेरी Arranged marriage vibe. हाँ, बहुत स्वीट सेटअप. नहीं, वो भी इसलिए क्योंकि इनकी शादी हो नहीं नहीं रही हो पा रही थी. है. वो क्यों नहीं हो रही वो भी देखना ज़रूरी है कि इतने खूबसूरत नौजवान गिन्नी और सनी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही थी. और उसके बाद जब उनकी शादी होती है, दैट इज़ वेयर आई फील द फिल्म ट्रूली बिगिंस. आप सबके लिए हैप्पी एंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए एक्चुअली? कि कोई फिल्म इन देखी फिल्म- है और फिल्म देखने के बाद में अगर अनरिजॉल्व रह गया है, डायरेक्टर क्रिएटर्स ने छोड़ दिया आपके ऊपर, आपको जो समझना है आप समझो. मुझे ऐसी फिल्मों से बड़ी दिक्कत होती है. हाँ, मुझे बहुत बहुत ही मजा आ जाता है. मुझे मालूम था. मुझे तो You बहुत look ही like मजा one आता of है those कि I people am के, हाँ, absolutely मतलब that let guy me just- जिसने ऐसे यहाँ पे आके, और डायरेक्टर के लिए तो एक्स्ट्रा प्यार आता है कि भाई ने ये बोला है कि जी आप तू बना, तुझे जो सोचना है सोच. Because that is true, like that is where art really comes through, right? That I've taken you to this point. From here on, whatever you want to think, you can think, build, create. That kind of confidence in your art, in what you're trying to create. मुझे लगता है वो सब बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है. बट मैम प्लीज. आई थिंक इट डिपेंड्स फॉर मी. ऐसा नहीं है कोई सैड एंडिंग है तो मेरा एकदम ही मूड ऑफ हो जाता है, बट आई डू क्रेव अ हैप्पी एंडिंग, स्पेशली अगर ऐसा दिखाया है कि हार्ट ब्रेक हो गया तो यार मतलब आई जस्ट फील हैप्पियर. अगर क्लोजर में दे दो, मुझे क्लोजर दे दो गाइस, फिल्म में तो होना चाहिए. राइट. मुझे ये ज़रूर लगता है कि मोर देन हैप्पी एंड आई थिंक सैड एंडिंग्स स्टे विथ यू फॉर लॉन्गर टाइम देन हैप्पी एंडिंग्स. That is strange with films because, and there's a reason unrequited love is still what we talk about rather than love stories that have happened. जब मिल जाते हैं लोग तो भूल जाते हैं, जब नहीं मिलता कोई तो याद रहता है. That's how human life is. Yeah. That's how human emotions is. So in films I feel unrequited stories are stories that definitely stay for longer, have a longer shelf life than just happy endings. गिन्नी सन्नी खुश रहे हैं, आशीर्वाद हमारा साथ है. और क्या है भाई, जियो मुस्कुराओ. ओके, कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर, एंड आप डिफेंड करती हैं, एक्सेप्ट करते हैं. इट्स अप टू यू. आप दोनों ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. द मैथ्स इज एब्सोल्युटली मैथिंग और नॉन मैथिंग. बॉयज़ प्रॉमिस द मून एंड द गैलेक्सीज, लेकिन एक बार चेस हो गया ना, लड़की आ गई हाथ में, उसके बाद में जो कुछ भी प्रॉमिस किया था वो सब हवा में. क्या आप इसे डिफेंड करना चाहते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सुना है. मतलब क्या आप डिफेंड करना चाहती हैं, एक्सेप्ट करना चाहती This हैं? kind of behavior? जी. No, I think I will not like to defend that. I think the relationship goes downhill the moment you become lazy and there is no effort. Yeah, because you can't like, you start out here and then you come here. It's not going to sustain the relationship. for या very बट long. नॉर्मली डू यू थिंक कि बॉयज बहुत प्रॉमिस करते हैं लेकिन फिर बाद में एक्शन? I can say from my experience, हाँ एक तो के साथ ऐसा हुआ है, but then one person was like would get the moon also. अच्छा. So I've had both experiences. सुपर. पर वो भी अब नहीं रहा साथ. Just keep quiet. मैं यही कहना चाहिए, मतलब क्या चाहिए भाई, ये तो मतलब anyway, चाहती sorry, क्या हो? sorry, I didn't want to, sorry. I'm making a new film. It's going to be called दिल चाहती है. And What दिल चाहते हैं? What does that mean? it's a sequel to दिल चाहता है. चाहता That है. you get to know what women really want. Oh, like that. One day yeah. we all will know. Inshallah. One day we'll know what women want. Gosh. What women truly want, yeah. Which is not a lot. Small things, tiny Absolutely things. small Joys. things. The joys. We can sit down and talk. If we are being neutral about it, we can sit down and discuss. I feel love stories today are underrated. So I'm glad गिन्नी व Absolutely. सन्नी आ रही हैं वापस. हो गया यार Why do you मेरा. think that's happening? Why do you think there is lack of love stories in films these days? People have lack of hope For love? for love. Yeah. But Faith ही that's- नहीं है अब. Is that something that is out of experience, or you think it's a narrative? What is it? It's people experiencing it? लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है अविनाश. जेनुइनली बोल रही हूँ. इतनी चीज़ें तो हम सीखते हैं, ठीक है,
वहाँ बर्फी और पेड़े के बीच में लव स्टोरी हो रही है, वो देख रहे हैं. वहाँ पे बनाना ने स्ट्रॉबेरी के ऊपर चीटिंग कर दी है, वो देख रहे I हैं. also watched that. What is that? I'm telling you, it is Dude, it's a the hole. That is not a rabbit hole, it's a rhinoceros hole. Yeah. And it just feels like And very ना- horrendous stories यार, ये strawberry बनाना कुछ अच्छा नहीं होता इनका closure. but by the end of it I want to know ना हाँ, जो पर बच्चा है वो छोड़ देते ना किसकी तरह cliffhanger. दिखने वाला है. So I feel to answer your question, मुझे ऐसा लग रहा है कि होप ही नहीं रहा. सबको चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो चले जाते थोड़ा पास्ट में, थोड़ा गाने का इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा कुछ पिक्चर देख ली. सऊदी जिंदगी नॉस्टैल्जिया, इसीलिए रीमिक्स पे रीमिक्स बन रहे हैं हमारे यहाँ. जी. और री रिलीजेस, नई चीज़ें कैसे, मतलब सवाल ही नहीं उठता, वो विश्वास ही नहीं रहा ना लोगों पे. सिनेमा, मैं आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट विद अ फ्रेंड, आई एम सो ईगर टू गो टू द सिनेमा. सच अ मिस. मैं देख ही नहीं पा रही हूँ अच्छी चीज़ें. क्या मतलब, मैं क्यों देखूँ यार खून खराबा, और मैं क्यों, मेरे को नहीं देखना है. मैं क्यों घर पे बैठ के OTT पे मैं बढ़िया बढ़िया सीरीज देखूँ. मुझे आप पिक्चर क्यों नहीं दिखा रहे हो यार अच्छी. और ऑडियंस वो कह रहे हैं ना सब स्मार्ट हो गए, हाँ हो गए, बट हम थके हैं, हम परेशान हैं अभी. फ्रैंकली ये है हमारा मतलब. एंड आई एम श्योर यू आर ऑल्सो एन ऑडियंस, तो मतलब इट्स नॉट जस्ट दैट योर परफॉर्मर्स एंड यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बस चलो लेके चलते हैं इसको आगे. मुझे तो ऐसा लगता है जितनी बार हम लोग कहते हैं ना समझदार हो गए हैं हम, वी हैव इवॉल्व्ड नाउ, वी आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीसीज. लुक एट अस, लुक एट द वर्ल्ड दैट वी, एंड वी आर द मोस्ट. इतना सेल्फ इम्पोर्टेंस है ना यहाँ पे हमारे स्पीसीज में. तो मुझे अब समझदारी से डर लगने लगा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा समझदारी आ गई है सबके पास. एवरीवन इज सो अंडरस्टूड, एवरीवन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. तो कोई बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि आप समझते ही हैं, आप भी समझते हैं, आप भी समझते हैं. यू कांट टॉक टू एनीवन बिकॉज एवरीवन इज ऑलरेडी. तो फिर चुप ही रहते हैं. फिर ऐसा लगता है कि, और इतने सारे शब्द सुनने मिल जाते हैं. ये मतलब ये सब हमने, आप भी यहाँ पे पिछले 10 साल से तो हैं ही. 5 साल पहले आपने सुना था गैस लाइटिंग क्या होती है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, रेड फ्लैग क्या होता है, ग्रीन फ्लैग क्या होता है, ये वाला क्या होता है, वो वाला क्या होता है. ये सारे जब लेबल्स दे दिए जाते हैं तो कोई कुछ बचता ही नहीं लेबल के अलावा. ओनली थिंग्स दैट वॉक इन, ओ रेड है, ये ग्रीन है, ओ बेज, ओ टॉक्सिक, ओ ये वो वाला टॉक्सिक है. ये वी आर जस्ट लेबलिंग पीपल विद दैट. मेरे कानों में जैसे ऐसे शब्द पढ़ते हैं ना, मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन. आई जस्ट वांट टू वॉक अवे द मोमेंट आई हियर थिंग्स दैट आर नॉट योर्स बट कंडीशन टू यू. आई थिंक मेरे लिए वही वहाँ पे दी एंड कि ये आपके विचार नहीं है, क्योंकि ये विचार तो मैं 4 बार सुन चुका हूँ ये इस प्लेटफॉर्म पे. आप अपने विचार दें तो लगेगा कि आपसे बात कर रहा हूँ. अभी तो ऐसा लगता है आपके इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये चल रहा है और आपके मुंह से भी वही निकलता है. आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, a lot of ambiguity in what we want, how should I be. गिनी विद सन्नी 2 के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? अविनाश, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल टू द ऑडियंस कि बस मत मिस करो यार मेरे को, क्योंकि मैं आई एम कन्विंस्ड. No, everything that you said, yaar, for the kind of films that are happening, and I genuinely feel this is a film that everyone that I love, everyone around me, people who want to have a good time can go and watch this film for a couple of hours, come back, thoroughly enjoy it and move on in life. It's not something that will कि 10 साल बाद अरे वो देख फिल्म आई थी गिन्नी विद सनी 2 उसमें. It's not that kind of film. It's a film that will get you all together, have a great time, enjoy it, move on. मैं तो नहीं कर रही मूव ऑन इस कॉन्वर्सेशन में, तो मजे आ रहे. 24 अप्रैल को आना है भाइयों इस फिल्म को देखने, जिसका नाम है सपरिवार गिन्नी विद सनी 2.